and welcome to Codecraft. So today's question is find minimum irrotated sorted array. So coming to the problem statement, suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums might become, so given we have given an array nums that has 7 elements, and it is saying that if we rotate it four times, that this array will look like this, and if we rotate it 7 times, then there is no change in and there is no change in the array. So what we can observe is, so if we rotate it 4 times, the last 4 elements comes at the start of the array, and if we rotate it 7 times, means if we rotate it according to the size of the element, then there is no change in the array. And notice that rotating an array one time results in the array this. This means that if we rotate the array one time, that means the last element of the array come to the start of the array. So last element will come to the first. So given the sorted rotated array nums of unique elements, return the minimum elements of this array. So basically we have to return the minimum elements from the array. And as it has already said that the array contains only unique elements, and it is in sorted rotated manner. So and we have to write the algorithm in big of log n time. So if we haven't given this constant, so what will be the our approach? So the brute force approach that can be firstly be just rotate sort the array, and then this will return the first element. But here the time complexity is big of n log n, because the sort function takes the time complexity of big of n log n. So we don't have to take that much time, so we have to do this question in big of log n time. So what we can do is we can use binary search here. So as if the array is sorted, so for sorted array, we can for searching the element, we can use binary search. It is very efficient and it runs in big of log n time. Understand the example, what can be the test cases. After that, we will code, and then you will understand this example first. So in the first example, we have the array, and in this array, there are 5 elements, and it is, as you can see, as it is rotated by 3 times. So the last 3 elements comes at the first. So here, when we start iterating, the first start will be the 0, and then end will be the 4. So if we calculate the mid, then it will be 2. If we iterate into this array, so क्या हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो छोटा हो सकता है, तो 1 जो होगा या यहाँ हो सकता है. तो फर्स्टली वी विल चेक कि अगर फर्स्ट का जो एलिमेंट है, सॉरी, अगर मिड का जो एलिमेंट है अगर बड़ा होगा अगर फर्स्ट के एलिमेंट से, तो इसका क्या मतलब होगा, या तो मतलब होगा कि एरे शॉर्टेड सॉरी रोटेटेड नहीं है, और नहीं तो अगर रोटेटेड है तो जो मिड एलिमेंट जो है वो इस साइड है. तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे न्यूम्स मिड और जीरो को, न्यूम्स ऑफ जीरो को, तो न्यूम्स ऑफ मिड जो है वो बड़ा है न्यूम्स ऑफ जीरो से. तो यहाँ पे ये या तो न्यूज जीरो ही छोटा होगा, नहीं तो अगर जो छोटा एलिमेंट होगा ये इधर होगा. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि लो को कर देंगे मिड+1. तो लो को मिड+1 करेंगे, तो लो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 3. और अब हम लोग इधर सर्च करेंगे इधर, तो अब मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड हो जाएगा 4+3 7, 7/6 यानी कि सॉरी 7/2 यानी कि 3. तो मिड आ गया 3, मिड हम लोग का इस बार 3 हो गया. तो न्यूम्स ऑफ 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूम्स ऑफ 0 है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है. तो नहीं है तो हम लोग दूसरा लूप में जाएंगे, सॉरी सेकंड कंडीशन में जाएंगे, और मिड को हम लोग कर देंगे मिनिमम एलिमेंट जो होगा उसको कर देंगे मिड. तो मिनिमम एलिमेंट मिड किए, तो यानी कि मिनिमम में हम लोग का इस बार आ गया 1. हाई को करेंगे फिर मिड-1, तो मिड 3 था, तो हाई को कर देंगे अब 2. तो वाइल लो इज स्मॉलर देन इक्वल टू मिड, तो लो इस बार कितना है 3, और मिड हाई जो हो गया 2 हो गया. तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे, और मिनिमम एलिमेंट जो होगा 1 जो होगा हम लोग का रिटर्न हो जाएगा. ये केस एक एक केस ये हो सकता है. और दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें कि अगर मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड फर्स्ट बार में 3 आएगा, तो 3 पे चेक करेंगे कि जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और जो मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो मिड इंडेक्स पर जो इंडेक्स है वह जीरो इंडेक्स पे बड़ा है कि नहीं. तो बड़ा है, तो बड़ा होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि या तो जीरो इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वही सबसे छोटा होगा, नहीं तो जो
मिड के बाद जो एलिमेंट होगा उसमें से कोई छोटा होगा। तो हम लोग सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड को कर देंगे अब, सॉरी लो को कर देंगे अब मिड प्लस वन, तो मिड थ्री था, तो लो अब हो गया यहाँ पे फोर। मिड प्लस वन करेंगे तो लो हो गया फोर, और उसके बाद जब मिड कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स प्लस फोर टेन, टेन डिवाइड बाई टू इक्वल टू फाइव, तो मिड हो गया फाइव। उसके बाद स्टार्ट हो गया फोर और मिड हो गया फाइव, मिड कैलकुलेट किए तो फाइव आया। उसके बाद क्या करेंगे कि न्यूम्स ऑफ मिड, मिड पे जो एलिमेंट है जीरो वाले इंडेक्स से बड़ा है या फिर छोटा, तो ऑब्वियसली छोटा है, तो छोटा है तो सेकंड कंडीशन में जाएंगे, और सेकंड में क्या करना है हम लोग को, मिड को कर देंगे इस बार, सॉरी मीन को जो कर देंगे, मीन हो जाएगा इस बार क्या, मीन हो जाएगा वन, और मीन वन हो गया, इसका मतलब होगा कि अब जो इससे छोटा जो एलिमेंट होगा, वन से छोटा होगा जो एलिमेंट, वो या तो इस दोनों में से होगा कोई, इधर तो नहीं होने वाला, तो इस दोनों में से ही कोई होगा। तो हाई को कर देंगे हम लोग मिड माइनस वन, तो हाई कितना था सिक्स, इसको मिड मिड कितना था फाइव, तो हाई हाई हो गया फाइव माइनस वन फोर, तो लोएस्ट मोर देन इक्वल टू हाई है, तो हाँ है। तो इस बार फिर चेक करेंगे न्यूम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूम्स ऑफ जीरो है, तो नहीं है, नहीं है, तो फिर हम लोग मीन को कर देंगे इस बार जीरो, और हाई को कर देंगे मिड माइनस वन, तो हाई को मिड माइनस वन किए तो मिड कितना था, मिड कितना था फाइव फोर था, मिड भी फोर था, तो अब हो गया थ्री, और स्टार्ट जो हम लोग का जीरो, तो स्टार्ट जो है बड़ा हो गया एंड से, तो ये अब कंडीशन है, और अंतिम में हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड को। उसके बाद इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हो सकता है कि निम्स, फर्स्टली हम लोग स्टार्ट किए ही हुए हैं कि निम्स ऑफ जीरो जो एलिमेंट होगा वो छोटा होगा, तो उसका रिट्रेट करेंगे, निम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू निम्स ऑफ जीरो है, तो हाँ है, तो इधर इटरेट करेगा, इधर इटरेट करने के बाद इसका स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो फर्स्टली हम लोग स्टोर किए हुए हैं निम्स ऑफ जीरो को सबसे छोटा एलिमेंट, तो ये रिटर्न हो जाएगा, तो आंसर में रिटर्न हो जाएगा 11, क्योंकि 11 सबसे छोटा एलिमेंट है। चलिए एक और एग्जांपल को समझते हैं, तो इस एग्जांपल में दिया हुआ है फाइव सिक्स जीरो वन टू थ्री फोर, और ये रोटेटेड बाई टू है, यानी कि लास्ट का जो टू एलिमेंट है फाइव और सिक्स वो फर्स्ट में आ चुका है, तो ये टू टाइम्स रोटेटेड है। तो इसमें स्टार्ट जीरो एंड सिक्स, और मिड जो कैलकुलेट करेंगे तो थ्री आएगा, तो मिड पे जो एलिमेंट है वो न्यूम्स ऑफ जीरो से बड़ा है या फिर छोटा, तो ऑब्वियसली मिड का जो एलिमेंट है छोटा है, तो छोटा है तो मीन को हम लोग कर देंगे मिड के बराबर न्यूम्स ऑफ मिड, तो कितना हो जाएगा, मीन में हो जाएगा वन, और उसके बाद हाई को कर देंगे मिड माइनस वन, तो हाई को कर देंगे हाई, हाई को कर देंगे इस बार टू, क्योंकि मिड थ्री है तो मिड माइनस वन, उसके बाद मिड कैलकुलेट करेंगे तो टू प्लस जीरो, मिड आ जाएगा वन। उसके बाद निम्स ऑफ मिड जो मिड पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है या फिर छोटा, तो उसकी छोटा है, तो फिर छोटा है तो अपडेट कर देंगे मिड को जो वन से जीरो, और हाई को कर देंगे मिड माइनस वन, तो मिड कितना था वन, तो माइनस वन किए तो हाई हो गया माइनस वन, सॉरी जीरो, जीरो, और मिड कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा जीरो। उसके बाद नेम्स ऑफ जीरो जो बड़ा या फिर बराबर है, तो हाँ है, तो लो को कर देंगे मिड प्लस वन, तो मिड कितना है, मिड है जीरो और लो को कर देंगे वन। अब हाई जो है जीरो और लो जो है वन, तो ऑब्वियसली और ये लूप से बाहर हो जाएगा, और मीन में हम लोग का जीरो है, तो जीरो हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलिए अब कोड करके देखते हैं, तो वही जो हम लोगों ने किया था वही कोड करना है, तो चलिए कोड करते हैं, पहले इंट लो लेते हैं जिसको बराबर जीरो कर देते हैं, उसके बाद हाई, इसको कर देते हैं मीन और साइज माइनस वन के बराबर, उसके बाद एक मिड ले लेते हैं जो तो हम लोग को रिटर्न मिड, और उसके बाद मिन ले लेते हैं जो कि पहले बराबर करते हैं न्यूम्स ऑफ जीरो के। उसके बाद ये लूप चलेगा वाइल लो स्मॉलर देन इक्वल टू हाई, इसके अंदर क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो मिड कैलकुलेट करेंगे कितना, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई टू। उसके बाद चेक करेंगे इफ अगर न्यूम्स ऑफ मिड बड़ा या फिर बराबर है न्यूम्स ऑफ जीरो के, न्यूम्स ऑफ जीरो, तो क्यों करेंगे वो पहले ही बता चुके हैं,
अगर ये कंडीशन होगा तो लो को कर देंगे हम लोग मिड +1, क्योंकि अगर अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो इसका ये मतलब है कि जो मिनिमम एलिमेंट जो होगा हम लोग का, या तो न्यूम्स 0 होगा, नहीं तो जो राइट वाले सब एरे में होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो मीन जो होगा उसको कर देंगे मिड के बराबर, मीन्स ऑफ मिड के बराबर, और हाई को कर देंगे मिड -1, और लास्ट में फिर रिटर्न कर देंगे मिन। फिर रन करते हैं इसको। तो रन हो गया है, अब चलिए सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड जो कि माइडी सर्च के ऊपर बेस्ड था। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था, ये ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।